नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूँ। लेसन नंबर 6, लिव इन द प्रेजेंट, एक्सेप्ट फ्रॉम सोल लेसन एंड सोल पर्पज, चैनल मटेरियल। द पावर टू क्रिएट lies only in the present. You cannot manifest anything in the past or future, but only in the now. When your focus is centered in the past or future, then you are not centered in the now. Patriji, when your focus is centered on this moment, you free up the energy you need to develop what you want. Your ego does not live in this way. Rather, it jumps back and forth from days long gone to those yet to come, losing all of its power to create in the instant. Dwelling on those other times steals your ability to create. The ego would you have believe that this protects you from negativity and disappointment, but this is a lie. Your ego must be trained to be in the moment. Living in the moment takes determination and disciplines, as the ego likes to replay over and over all slights and injustice or routines, good or bad, and anything that is familiar in order to distract you from the present. The present, even with all its frustration and sorrow, is a gift from the Lord of the universe. Every experience, pleasant or painful, sharpens your soul and brings more learning to it. Do not remain arrested in unresolved childhood traumas. You are impacted by your family of origin because it is where you first learn your value, are introduced to relationships, and given your earliest tools to navigate the world. But eventually, you must recognize your family limitations and the ways in which you feel that they have wounded you, forgive them, and move on. Remember that your relatives are part of your soul school, that you have chosen them. They create an incubator or a hothouse, so to speak, where you can grow your soul as quickly as possible, and they actually serve you well. However, your true parents are not here on this plane, but are the divine Holy Father and blessed Mother who created you. Your mom and dad are a scared vessel who give you passage to our school and are to respected and honored for agreeing to do this. But they are not your true origin. Love these people and realize they are fumbling through our school just like you are. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। Lesson number 6, live in the present, assets from soul lesson and soul purpose, channel material. The power to create lies only in the present. You cannot manifest anything in the past or future, but only in the now. When your focus is centered in the past or future, then you are not centered in the now. Patriji. When your focus is centered on this moment, you free up the energy you need to develop what you want. Your ego does not live in this way, rather, it jumps back and forth from days long gone to those yet to come, losing all of its power to create in the instant. Dwelling on those other times steals your ability to create. The ego would have you believe that this protects you from negativity and disappointment, but this is a lie. Your ego must be trained to be in the moment. Living in the moment takes determination and discipline, as the ego likes to replay over and over all slights and justice, all routines, good or bad, and anything that is familiar in order to distract you from the present. The present, even with all its frustration and sorrow, is a gift from the Lord of the universe. Every experience, pleasant or painful, sharpens your soul and brings more learning to it. Do not remain arrested in unresolved childhood traumas. You are impacted by your family of origin because it is where you first learn your value, are introduced to relationship, and given your earliest tools to navigate the world. But eventually, you must recognize your family limitations and the ways in which you feel that they have wounded you, forgive them, and move on. Remember that your relatives are part of your soul school and that you have chosen them. They create an incubator or hothouse, so to speak, where you can grow your soul as quickly as possible, and they actually serve you well. However, your true parents are not here on this plane but are the divine Holy Father and blessed Mother who created you.
Your mom and dad are the scared vessel who give you passage to our school, and they are to be respected and honored for agreeing to do this. But they are not your true origin. Love these people and realize they are fumbling through our school just like you are. आइए दोस्तों, हम इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। पाठ संख्या छठा, वर्तमान में जियो। आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य से अंश लिए गए हैं। चैनल सामग्री, सृजन की शक्ति केवल वर्तमान में निहित है। आप अतीत या भविष्य में कुछ भी प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन केवल अभी में। जब आपका ध्यान अतीत या भविष्य में केंद्रित होता है तो आप अभी में केंद्रित नहीं होते। पत्री जी, जब आपका ध्यान किसी क्षण में केंद्रित होता है तो आप जो चाहते हैं उसे विकसित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को मुक्त कर देते हैं। आपका अहंकार इस तरह से नहीं रहता कि बल्कि यह बीते हुए दिनों से लेकर अभी आने वाले दिनों तक आगे पीछे उछलता रहता है और तत्काल सृजन करने की अपनी सारी शक्ति खो देता है। उन अन्य समयों पर ध्यान देने से आपकी सृजन करने की क्षमता खत्म हो जाती है। अहंकार आपको विश्वास दिलाएगा कि यह आपको नकारात्मकता और निराशा से बचाता है, लेकिन यह झूठ है। आपके अहंकार को इस क्षण में बने रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। पल में जीने के लिए दृढ़ संकल्प और अनुशासन की आवश्यकता होती है, क्योंकि अहंकार आपको वर्तमान में विचलित करने के लिए सभी छोटी छोटी बातों और अन्यायों, सभी दिनचर्या की को बार बार दोहराने को पसंद करता है। वर्तमान अपनी सारी निराशा और दुख के साथ भी ब्रह्मांड के भगवान का एक उपहार है। प्रत्येक अनुभव, दुखद या दर्दनाक, आपकी क्षमता को तेज करता है, उसमें और अधिक सीख लाता है। बचपन के अनसुलझे आघातों में फंसे न रहें। आप अपने मूल परिवार से प्रभावित होते हैं, क्योंकि यही आप सबसे पहले अपना मूल्य सीखते हैं। रिश्तों से परिचित कराया जाता है और दुनिया को संचालन करने के लिए आपको शुरुआती उपकरण दिए जाते हैं, लेकिन आखिरकार आपको अपने परिवार को पहचानना ही होगा। सीमाएं और वे तरीके जिनसे आप इसे महसूस करते हैं। उन्होंने तुम्हें घायल किया है, उन्हें माफ कर दो और आगे बढ़ो। याद रखें, आपके रिश्तेदार आपके आत्मा स्कूल का हिस्सा है और आपने उन्हें चुना है। वे एक घर या ऊष्मा नियंत्रित बनाते हैं, इसलिए कहें तो कहाँ आप जितनी जल्दी हो सके अपनी आत्मा विकसित कर सकते हैं, और वे वास्तव में आपको सेवा करते हैं। हालांकि आपके वो और वे वास्तव आपकी सेवा करते हैं, हालांकि आपके बच्चे माता पिता नहीं हैं ये विमान, लेकिन दिव्य पवित्र पिता और धन्य माँ है जिन्होंने आपको बनाया है। आपके माता और पिता पात्र हैं जो आपकी पृथ्वी विद्यालय तक जाने का रास्ता देते हैं, और उनका सम्मान किया जाना चाहिए और ऐसा करने के लिए सहमत होने के लिए सम्मानित महसूस किया गया। लेकिन वे आपके असली मूल नहीं हैं। इन लोगों से प्यार करें और महसूस करें कि वे भी आपकी तरह पृथ्वी विद्यालय में लड़खड़ा रहे हैं। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से आगे विस्तार रूप से सुनते और समझते हैं। पाठ संख्या 6, वर्तमान में जियो। आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य से अंश लिए गए हैं। चैनल सामग्री, सृजन की शक्ति जो केवल वर्तमान में ही निहित है, वर्तमान में ही है। अगर हम अतीत या भविष्य में कुछ प्रकट नहीं कर सकते, जो प्रकट कर सकते हैं वो वर्तमान में कर सकते हैं, अभी में कर सकते हैं। जब हमारा ध्यान अतीत या भविष्य में केंद्रित होता है तो हम वर्तमान में नहीं रहते। पत्री जी बता रहे हैं, जब आपका ध्यान इस क्षण में केंद्रित होता है तो आप जो चाहते हैं उसे विकसित करने के लिए हम आवश्यक ऊर्जा मुक्त कर सकते हैं। आपका अहंकार इस तरह से नहीं रहता, यह बीते हुए दिनों से लेकर अभी आने वाले दिनों तक आगे पीछे उछलता रहता है, आगे और पीछे के बारे में ज्यादा सोचता रहता है, उसके बारे में बता रहे हैं। और तत्काल सृजन करने की अपनी सारी शक्ति खो देता है। उन अन्य समयों पर ध्यान देने से आपकी सृजन करने की क्षमता खत्म हो जाती है। अहंकार आपको विश्वास दिलाएगा कि आपको
नकारात्मकता और निराशा से बचाएगा, लेकिन वो झूठ है। आपके अहंकार इस क्षण में बने रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। पल में जीने के लिए दृढ़ संकल्प और अनुशासन की आवश्यकता होती है, क्योंकि अहंकार आपको वर्तमान में विचलित करने के लिए सभी छोटी छोटी बातों और अन्यायों में सभी दिनचर्या में बार बार आपको दोहराएगा। वर्तमान अपनी सारी निराशा दुख के साथ भी वर्तमान में भी सारी निराशा दुख के साथ के बारे में बता रहे हैं। ब्रह्मांड के भगवान का एक उपहार है। प्रत्येक नव दुखद या दर्दनाक सुखद या दर्दनाक आपकी क्षमता को तेज करता है। जो भी हम अनुभव करते हैं सुखद या दर्दनाक, वो हमें हमारी आत्मा को, जो उसकी क्षमता को तेज करता है, उसमें और अधिक सीख लाता है। बचपन के अनसुलझे आघातों में फंसे न रहें। जैसे बचपन में जो भी घटना घटी, उन चीजों में हम फंसे ना रहें, उनके बारे में हम ज्यादा चिंतन ना करें, वर्तमान में रहें, उसके बारे बता रहे हैं। हम अपने मूल परिवार से प्रभावित होते हैं, क्योंकि यही पर हम सबसे पहले अपना मूल्य जानते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पे रहकर हमें रिश्तों से परिचित कराया जाता है, और दुनिया को में संचालन करने के लिए हमें शुरुआती उपकरण दिए जाते हैं। लेकिन आखिर आपको उन परिवार को पहचानना ही होगा, सीमाएं और वे तरीके जिनसे आप महसूस करते हैं। जिन्होंने हमें घायल किया है उन्हें माफ करना और हमें आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ बता रहे हैं। याद रखें कि आपके रिश्तेदार आत्मा के स्कूल के हिस्सा हैं। हम आत्मा के स्कूल में उनको चुना है, और यहाँ पर हम सीखने के लिए आए हैं एक दूसरे से। वे एक गर्म घर या ऊष्मा नियंत्रक एक मशीन की तरह बता रहे हैं। इसलिए कहें तो आप जितना जल्दी हो सके अपनी आत्मा विकसित कर सकते हैं। वे वास्तव में आपकी सेवा करते हैं। हालांकि आपके सच्चे माता पिता नहीं हैं। जैसे हम सभी जानते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संजय संगति करते हैं, कि जो हमारे माता पिता हैं वो वास्तव में माता पिता नहीं है। हमने उन्हें चुना है, हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं, और वास्तविक माता पिता परमात्मा हमारे हैं, उनके बारे बता रहे हैं। लेकिन दिव्य पवित्र पिता और धन्य माँ जिन्होंने हमें बनाया है, जिनके द्वारा हम आए हैं, उनके बारे बता रहे हैं। आपके माता और पिता जो एक पात्र हैं, जो आपको पृथ्वी विद्यालय में जाने के लिए एक रास्ता दिया है, उनके द्वारा हम आए हैं, उनके माध्यम से आए हैं, उनके बारे बता रहे हैं। और ऐसा करने के लिए, सहमत होने के लिए हमें सम्मानित महसूस होना चाहिए, और आपको असली वो मूल नहीं है, यह हमें अच्छी तरह जानना चाहिए, समझना चाहिए। इन लोगों से प्यार करें और महसूस करें कि वे भी आपकी तरह पृथ्वी स्कूल में आए हैं, वो भी अपना अनुभव ले रहे हैं। यहाँ लड़खड़ाने का मतलब जो है कि वो भी ऊपर नीचे हर चीज के अंदर सुख या दुख जो सी चीज का अनुभव कर रहे हैं। तो इन चीजों के माध्यम से हम इस अध्याय से यही सीखा कि माता पिता हमारे असली मूल नहीं है, और सृजन करने के लिए हमें वर्तमान में रहना चाहिए। अगर हमारा वर्तमान में ध्यान केंद्रित नहीं है तो हम अभी वर्तमान में नहीं है, अतीत या भविष्य में नहीं रहना चाहिए। वर्तमान में जो भी हम सृजन कर सकते हैं तो वर्तमान में ही हम उसको कर सकते हैं। अतीत या भविष्य को में ज्यादा ना सोचकर अपना ऊर्जा को नष्ट ना करें। इन चीजों को हम अच्छी तरह समझें। पत्ती सर के द्वारा बताए गए आनापानसति ध्यान स्वाध्याय संजय संगति को नियमित रूप से करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।